A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are covering to do practical of HTML pages. So in this, we create a HTML page and with the help of CSS, we create it very attractive. Okay. So first of all, what we have to do, हमने यहाँ पे क्या करा, HTML टैग्स ले लिए. ओके उसके बाद हमने क्या किया, हेड के अंदर हमने क्या लिख दिया, टाइटल, पेज का टाइटल जो भी आप लिखना चाहते हो वो यहाँ लिख दीजिए. जैसे अपन लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू CSS. ओके सो इफ आई राइट इंट्रो टू CSS. ओके चलिए, इसके बाद हमने क्या किया, बॉडी पार्ट लिया. बॉडी पार्ट के अंदर हमने H1 लिखा. H1 का मतलब क्या होता है, हेडिंग. जैसे हमने पहले पढ़ाई था, हेडिंग अगर आप कोई भी चाहते हैं, H1 जो है सबसे बड़ी साइज की होगी, एक्स्ट्रा लार्ज, देन H2 H3, ये इस तरह से इसकी साइज कम होती रहेगी. ओके देन P इज फॉर पैराग्राफ टैग. ओके सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेव दैट इन आवर HTML format. Okay, so when we have to do that, we have a home, we have to see the icon like this. Okay, so when we have to open this, you can see that here this is a heading, this is a paragraph. इस तरह से आपको एक वाइट पेज दिख जाएगा. ठीक है, बट अब ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ ज़्यादा स्टाइलिश नहीं, तो अपन कहते हैं इसमें थोड़ा कलर चेंजेस चाहते हैं अपन. ठीक है ना, तो उसके लिए जब भी आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, CSS का हेल्प लेना पड़ता है. विद द हेल्प ऑफ CSS what we have to do, we can create or look our website very attractive. Okay, so for that we know, we have studied today that there are three kind of CSS used in HTML and CSS. The first one is external, second one is internal, and third one is inline. So here we can use first of all our inline CSS. Okay, so in inline CSS what happen is you have to write P, and in that P tag first of all we have to write style. It indicates that we use a CSS file. Okay, so after style you have to write an equals to sign, and we know that in style we have two things, that is key and value. So first of all, key is if I want to write this color and here red. Okay, if I save it and look at our website, what happen is you can see that this is a paragraph is written in red color. Okay, so this is what we called a inline CSS. Okay, so what now we are talking about internal CSS. So for that I have write something again. So again I have to create a different P tag. In that I have write this is our first website. Okay, and I have closed that P tag also here. Okay, so now we have to check what happens. Now you can see that this is our first website is written in black color, this is our red color. So suppose I have to write and another P tag, include on another P tag with, and here I have to write this suppose my name is Anurag Joshi. ओके चलिए, इसको भी हमने सेव करा. हमारे वेब पेज पे आते हैं, इसको रीलोड करते हैं, तो अब देखिए माय नेम इज अनुराग जोशी आया. अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमने अलग अलग लिखा, 3 पैराग्राफ्स हैं हमारे पास. ठीक है ना, बट स्टाइल शीट जो हमारा कलर चेंज हुआ किस वजह से, पेज पर हम क्या चाहते हैं कि हमारे सारे जो भी वेब जितने भी P टैग के अंदर हमने चीज़ें लिखी वो सारी क्या हो, रेड कलर की हो जाए. ठीक है ना, जो भी आप कलर चाहते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, उस कलर में हो जाए. तो उसके लिए आप क्या करोगे, बार बार ये स्टाइल शीट वाला ये कोड वापस पूरा थोड़ी ना लिखेंगे, हम ये चीज़ लिखेंगे नहीं. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनलाइन CSS का यूज करेंगे. विद द हेल्प ऑफ इनलाइन CSS वी हैव टू चेंज द कलर ऑफ फॉन्ट फैमिली, एवरीथिंग of that P tag. Okay, so now we going to use inline CSS. So in internal CSS what we have to do is we have to create a tag of style in our head part. Okay, so I have to first of all remove here, and in that head part we have to write a, we have to create a style sheet. Okay, so I have to create
a tag of name style. Okay, and I have to close that also. Okay, so now what we have to do, I want the color of all the paragraph tags are same. Okay, so here I have to write P, then the curly braces, in that I have to write color, and suppose I have to give that color yellow. Okay, now I have write H1, and that H1 I want to this in also a color, and that's blue. Okay, now I have to save this and open our page and check whether what has been. Oh, here you can see that this is working. This is a heading is written in a blue color with yellow colors पैराग्राफ टेक्स्ट. ओके, सो आप देखिए हमने सिर्फ एक बार कोड लिखा यहाँ पे एक स्टाइल टैग के अंदर, हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा था पी के, और मतलब पी के अंदर हमें क्या करना है, कलर येलो करना है. तो अगर हम सारे कलर्स सारे पी टैग्स को येलो करना चाहते हैं तो आपको बार बार इन लाइन यूज करने की जरूरत नहीं है. आप इंटरनल CSS की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप लोग उसको कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी तरह की एडिटिंग आप कर सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सटर्नल CSS. सो फॉर यूजिंग एक्सटर्नल CSS you have to create a new notepad file. So here I have created a new notepad file of style name. Okay, so here what I want to do, first of all I use a body tag, and that I have to write the property background color powder blue. Okay, then for H1 I have to write color blue, and in that P tag I have write color red. Okay, and then simply you have to go to file and save that notepad file in .css extension. Okay, जब आप HTML पेज बना रहे हैं तो आप क्या करें, .html यूज कर रहे हैं, बट अगर आप जब एक्सटर्नल CSS का कोई भी फाइल बना रहे हैं उसके लिए आपको .css एक्सटेंशन फाइल यूज करनी है. ओके, आप इसको जैसे ही क्रिएट करेंगे उसके बाद आपका जो HTML वाला नोटपैड फाइल है आप उसके ऊपर जाएंगे, उसके अंदर आपको क्या करना है, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है. लिंक कर रहे हैं, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी स्टाइल शीट है उसको लिंक कर रहे हैं. ओके, और जो हमारी स्टाइल शीट का नाम है वो क्या, style.css. तो आप रेफरेंस, इसको कहते हैं H रेफरेंस, मतलब ये href मतलब क्या, रेफरेंस. हम किसका रेफरेंस ले रहे हैं, जो हमारी टेक्स्ट फाइल है CSS वाली उसका ले रहे हैं. ओके, वो लिख दिया हमने, यहाँ पे और कुछ नहीं करना. अब यहाँ पे कोई आपको स्टाइल टैग लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना. आपने सारी कोडिंग जो भी आप डिजाइनिंग पार्ट था उसके लिए आपने एक अलग फाइल बना ली. ठीक है ना. तो मैंने आपको क्या बताया, एक्सटर्नल CSS के अंदर क्या होता है कि अगर ये वाली फाइल करप्ट भी हो जाए, ठीक है ना, तो अब क्या आपकी एक्सटर्नल CSS वाली फाइल तो पहले चाहिए, तो आप वापस आपको सारी की सारी स्टाइलिंग की जो भी कोडिंग को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. या अगर अब आप मल्टीपल पेजेस बनाते हैं तो उसके अंदर आपको सेम यही रखना है कि उसके अंदर बैकग्राउंड वैसा का वही हो, ब्लू कलर का हो, आपके फॉन्ट साइज वही रहे, कलर वही रहे, तो आपको हर पेज पे अलग अलग जाके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सिर्फ ये लाइन, एक सिंगल लाइन इंसर्ट करनी है उस पेज के ऊपर, आपके हर पेज के ऊपर वो वाली कोडिंग आ जाएगी. ओके, चलिए अब हम इसको जब रन करके देखते हैं तो यहाँ पे अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास देखिए ये ऐसा आउटपुट आ गया आपके पास. ओके, आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा था, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, लाइट ब्लू होना चाहिए. आपका जो पैराग्राफ्स है वो कैसे होने चाहिए, ये देखिए आपको बता देता हूँ, आप अगर भूल गए हो. देखिए बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू आ गया हमारा, जैकेट कलर ब्लू हो गया हेडिंग का. ओके, दिस इज ऑल्सो डन. देन P हैज a color red, so we have a red color paragraph. Okay, this is the example of internal, inline and external CSS. Okay, I hope you have to understand all this very clearly. If you have any doubt related this, you can easily ask. Okay, do it at your home, it's very fun time. Thank you, have a nice day.